Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address company-specific or stock-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. Do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। और श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है, दिन शनिवार का है और आज का दिन तो आपका ही होता है। अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी सवाल हो, हमसे फोन करके जरूर पूछें। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 310 464। तीनों नंबर दिल्ली के 011 STD कोड प्रीफिक्स करें, नंबर डायल करें, अपने सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इकोनॉमिक एंड फाइनेंस जर्नलिस्ट राजीव रंजन उपस्थित हैं। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Thank you, Harsh. Prime Minister Narendra Modi to release the 19th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme on Monday. Domestic markets declined for the second straight week. Both Sensex and Nifty drop over 0.5%. And US benchmark indices fall nearly 2% on concerns about economy and tariffs. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त सोमवार को बिहार के भागलपुर से जारी करेंगे। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह आधे प्रतिशत की गिरावट और अर्थव्यवस्था और टैरिफ की आशंकाओं के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में लगभग 2% की बड़ी गिरावट। Prime Minister Narendra Modi will release the 19th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme on Monday from Bhagalpur, Bihar. The scheme provides 6,000 rupees annually to landholding farmers in 3 equal installments. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the day of the release will be celebrated as Kisan Samman Samharoh to create awareness about the schemes of the central and state governments. He said more than 9.8 crore farmers across the country will receive financial assistance of over 22,000 crore rupees through direct benefit transfer. Mr. Chauhan said that farmer welfare is the top priority of the Modi government. He said more than 3.46 lakh crore rupees have been disbursed so far to more than 11 crore farmer families in the country under the PM Kisan scheme. Mr. Chauhan mentioned that programs will be organized in 731 Krishi Vigyan Kendras across the country on Monday. The minister said approximately 2.5 crore farmers will join the program physically and virtually. And now let's take the first call coming in from Gurugram. Our listener Anil is calling us from there. Anil, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Looks like अनिल जी, क्या आवाज आ पा रही है? नहीं, ऐसा लगता है अनुभव कि अनिल के साथ संपर्क नहीं। दूसरे कॉलर के पास चलना होगा। कर्मवीर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। कर्मवीर जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। नमस्कार सर जी, आप पूछ लें सवाल। क्या मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकता हूँ? एक्चुअली मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी उम्र 45 साल है और मैं हर महीने ये जो VPF होता है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ 88%, तो जो कोई 46,000 रुपए के करीब बैठता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है और क्या ये एक अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मैं और कुछ नहीं करता हूँ। आपने उम्र कितनी बताई?
45 साल, एक लड़का है मेरे पास, खुद का घर है दिल्ली में। मतलब 60 साल में अभी 15 साल बाकी है। राजीव बताएं। जी कर्मवीर जी, आप वीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में अच्छी बात है और वो एक सुरक्षित निवेश है और उसमें सामान्य रूप से एक अच्छा रिटर्न जरूर मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो एक तरह का फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में आने वाला निवेश ही है। और यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन चाहिए, जो आपके लाइफ के बड़े फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनके लिए, अभी आप 45 वर्ष यानी मध्यम आयु वर्ग में हैं और आपके पास अभी भी उम्र है, हालांकि ये मैं जरूर कहूंगा कि एक अच्छा खासा समय आपने बिता दिया है, जिस बीच में अगर आपने इक्विटी में निवेश किया होता यानी शेयर बाजार में, चाहे वो सीधे या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहा होता। लेकिन ठीक है, कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, तो अभी भी आप अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा जरूर आप शेयर बाजार में लगाएं। और चूंकि आपने अभी तक शेयरों में बिल्कुल पैसा नहीं लगाया है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से निवेश शुरू करें। वीपीएफ जो आप चला रहे हैं वो आप जरूर चलाते रहिए, लेकिन अपनी बचत का कुछ हिस्सा आप इक्विटी में जरूर लगाइए म्यूचुअल फंडों के माध्यम से। और उसमें सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप सेंसेक्स ईटीएफ या निफ्टी ईटीएफ या इनके इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड या निफ्टी इंडेक्स फंड, इनको आप चुनें किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड घराने का। लगभग सबके पास इस तरह के इंडेक्स फंड होंगे, ईटीएफ होंगे, उनमें से कोई भी चुन करके आप उनमें हर महीने अपनी बचत का कुछ हिस्सा लगाना जरूर शुरू करें। जो वीपीएफ आप चला रहे हैं वो आप चलाते रहें। राजीव, अगर इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं तो क्या निफ्टी में अगर लगाएं तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 में ही लगाएं, या और जितने इंडेक्सेस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं? देखिए, ये शुरुआती है, मतलब ये मैं कहूँ स्टेपिंग स्टोन या एक पहला कदम जो है उसकी तरह से है। पहले उन्हें एक बात समझ में आने लगे कि ये किस तरह से काम करते हैं, उसके बाद तो फिर आपके सामने बहुत सारी चीजें खुलती हैं। और मैं कहूंगा कि उसमें बहुत ज्यादा हाथ पैर फैलाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने सेंसेक्स इंडेक्स फंड और निफ्टी या निफ्टी इंडेक्स फंड इसमें लगाना शुरू किया और उसके बाद जब आपको लगता है कि नहीं मेरी बचत बढ़ रही है, मुझे थोड़ा सा और लगाना है, तो आप वहां पर मिड कैप में या स्मॉल कैप में इनके भी वही इंडेक्स फंड या ईटीएफ चुन सकते हैं। वो भी इससे अगला कदम हो सकता है। और अभी चूंकि मार्केट गिरा हुआ है अनुभव, तो ये इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टाइम टू इन्वेस्ट। बिल्कुल, एज अ स्टेपिंग स्टोन आल्सो, एज अ एंट्री पॉइंट फॉर पीपल हु हैव नॉट, लाइक यू सेइंग आवर लिसनर्स, he has not invested in the equity market at all, so this is a very good, that's a very good entry point for such people. Certainly, yes. And now let's take the next call from which is coming in from Mumbai. Ratnakar is calling from there. Ratnakar, welcome to Market Mantra. Please ask question. हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। जी हाँ, मेरे दो सवाल है। एक पहला सवाल है कि अभी मैंने मेरे लड़के के लिए एक जगह लिया पुणे में, तो उसमें ऑल्सो आई एम को ओनर, तो मेरा एक दूसरा फ्लैट मैं अभी बेच रहा हूँ, तो वो फ्लैट का पैसा मुझे लड़के के फ्लैट में इन्वेस्ट करना है, तो कैपिटल गेन का क्या प्रोसीजर रहेगा और वो कितने टाइम तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? और समझो वो पीरियड में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट कैसा हो जाएगा, कितना टैक्स पड़ेगा, और आने वाले समय में मार्केट अभी जो कोलैप्स हो रहा है वो कैसे रहेंगे? थैंक यू जी। रत्नाकर जी, जो आपका पहला सवाल है कि आप एक संपत्ति बेच रहे हैं और उस पैसे को आप एक नई संपत्ति में लगा रहे हैं, तो एक सामान्य समझ के हिसाब से मैं ये जरूर आपको कह सकता हूं कि आप जो नया निवेश नई संपत्ति में करेंगे, अगर आपने वो लगभग पूरा पैसा जो संपत्ति आप बेच रहे हैं उसका अगर आपने नई संपत्ति में लगा दिया, तो उससे आपको कैपिटल गेन में जरूर बचत होगी। लेकिन इस बारे में आप किसी टैक्स एक्सपर्ट से सीधे बात करके उसे अपनी सारी स्थितियां बताइए और उस पर सलाह लीजिए, वो एक ज्यादा बेहतर तरीका होगा। क्योंकि बिना सारी स्थितियां जाने हुए यहां पर मैं रेडियो पर आपसे कोई बात कहूं वो उचित नहीं होगा। दूसरा सवाल इनका निवेश के बारे में जी, उन्होंने कहा मार्केट से कोलैप्स कर रही है उसके बाद। जैसा अभी पिछली बातचीत में भी, पिछले सवाल पर जो चर्चा हुई उसमें भी अभी अनुभा जी जैसा जिक्र कर रही थी कि ये एक अच्छा समय हो सकता है एंट्री पॉइंट के रूप में, निश्चित रूप से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मानिए कि आज अगर आपने पैसा लगाया और अगले एक हफ्ते में या अगले एक महीने में आप अपने शेयर को
अपने खरीदे हुए भाव से घटे हुए भाव पे नहीं देखेंगे, ऐसी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो एंट्री पॉइंट अच्छा होने का मतलब ये है कि बाजार ने अपने एक्सेसेज कम किए हैं, जो पहले एक हायर वैल्यूएशन के रूप में एक्सेसेज दिख रहे थे वो कम हुए हैं निश्चित रूप से। क्या बाजार यहीं से पलट जाएगा ऊपर, कोई नहीं जानता। And when we are talking about an entry point, it's like I said, entry point for people who have not as yet entered the investment, the share market, and also for those who are already in the share market. I think it's a very good time because, you know, the blue chips shares, which are normally very high. This is a very good time to readjust your portfolio. Exactly. To add stronger shares. True. And basically clean up your portfolio. Absolutely. Get rid of those momentum stocks. Right. And let's now take the next call from Delhi. That's Mr. Satish is calling us from Delhi. Welcome to Market Mantra. Please ask your question. My question is that whether my shares are stuck up in Investor Education Fund since 1.5 years. In spite of completing all the formalities, I am not able to take them out. Second question, whether it is good to pass the insolvency resolution professional exams. Thank you. नहीं, आप सतीश जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे? सतीश जी का कॉल शायद कट गया है। ये जहां तक मैं समझ पाया राजीव, ये पैसे अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं इन्होंने और ये उस पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। अब ये पता करना बहुत जरूरी है कि कारण क्या है, डीमैट में है या नहीं है, एग्जैक्टली वो फिजिकल फॉर्म में है या उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, किस कारण से, या जिस ब्रोकर के थ्रू उन्होंने लगाया था, या जो फ्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन फंड फ्रीज हो गया है इन्होंने कहा। नहीं, लेकिन वो फ्रीज होने का कारण क्या है, जब तक वो चीज स्पष्ट नहीं होगी, उन्हें ऑब्वियसली जिस भी ब्रोकर के माध्यम से उन्होंने निवेश किया होगा, अगर शेयर हैं तो निश्चित रूप से ब्रोकर के माध्यम से किया होगा, उन्हें अपने ब्रोकर से संपर्क करके पूछना चाहिए कि ये फ्रीज क्यों हुआ है। और सारी समस्याओं के समाधान के लिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से सेबी आजकल एक्टिव है, अगर आप वहां मेल लिखें तो वहां से जवाब देर सवेर जरूर आता है, एटलीस्ट ये सुझाव देने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। जरूर, वो एक प्लेटफॉर्म है और उसके अलावा आपके पास दोनों एक्सचेंज जो प्रमुख हैं उनके पास भी इन्वेस्टर हेल्पलाइन के एवेन्यूज हैं, आप उनके ऑफिस में जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं। जी। अतानु शाह एक बार फिर जुड़ चुके हैं कोलकाता से। अतानु, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। Good evening, sir. Good evening to everybody. Sir, my question is, what demand of renewable energy producing products, renewable energies producing products, its demand in India? आपकी आवाज क्लियर नहीं है अतानु जी। हाँ, हम फिर से बोल रहे हैं। Sir, what about demand of renewable energy producing product? Okay. So basically he wants to know what is the demand for renewable energy in the country, the products which are, which are used for producing renewable energy, be it solar panels or other such. What is the demand for those products? ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है और देखिए दरअसल भारत को ऊर्जा की जरूरत है, अब वो जिस फॉर्मेट में मिले। ट्रेडिशनली हम जो फॉसिल फ्यूल है उसके माध्यम से ये एनर्जी प्रोड्यूस करते रहे हैं, लेकिन अब सरकार का काफी जोर रहा है कि आप जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको अधिक से अधिक हिस्सेदारी आपकी टोटल एनर्जी बास्केट में बढ़ाई जाए। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से एक एंड कंज्यूमर के लिए क्या है, उसे तो अपने घर में बिजली चाहिए, या अगर कोई बिजनेस है तो उसे अपने प्लांट में बिजली चाहिए। लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पे जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, और नीति निर्धारक के रूप में सरकार, उसे अपनी दिशा चुननी है। तो आपके पास एक बैलेंस जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम बोलें कि नहीं हमें फॉसिल फ्यूल की जरूरत ही नहीं है, मतलब क्रूड ऑयल की जरूरत ही नहीं है या कोल बेस्ड प्लांट्स की जरूरत ही नहीं है, हमें सारा कुछ रिन्यूएबल की तरफ ले जाना है, चाहे वो सोलर हो या विंड एनर्जी हो, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन
रिन्यूएबल को क्या हम पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो फ्यूचर है, हमें उस तरफ आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर, वो एक काफी बड़ा सोर्स है एनर्जी का। तो इन सारे सोर्सेज का एक अच्छा बैलेंस बना करके चलना चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी डिमांड इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को वो मतलब 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़े, वहां तक लिमिट हो। इसके लिए अभी जितना प्रोड्यूस हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, उससे 3 टाइम्स ज्यादा आपको जरूरत है और भारत भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर चुकी हिस्सेदारी अपनी निभा रहा है। इस वजह से आने वाले समय में, आने वाले दशकों में इसकी जबरदस्त जरूरत पड़ेगी। And we do have a PM solar, energy in a scheme which was introduced in the budget last year that is doing very well. The government, like you said, at its level is introducing such schemes. It is introducing, it is giving more budgetary allocation to the incentives, to the programs which will encourage such non-renewable energy sources. Right. Certainly. Yeah. And now let's take the next call coming in from Delhi. That's Kunal calling us from there. Kunal, please ask your question. Hello. Hello, Ji Kunal. Am I audible? Yes, you are audible. Please ask your question. Yeah, ma'am, I have 2 small questions. I hope they are not too technical or you cannot discuss them here. एक तो वी कीप ऑन गेटिंग दिस इन द मार्केट, ये शेयर ऑपरेटर ड्रिवन है, इसने ऑपरेटर ने ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, तो हाउ डू दीज कार्टेल्स वर्क? अगर आप इसका मेरे को कुछ ब्रीफ बता पाए, क्योंकि यू विल नॉट फाइंड दिस आंसर एनीवेयर एल्स। दूसरा, अभी सर ने बात करी थी कि एक्सेसिव वैल्यूएशंस को ट्रिम कर दिया गया है, तो किसी इंडस्ट्री में एक्सेस वैल्यू कोई पीई होता है 100 का, किसी इंडस्ट्री में 40 का पीई भी बहुत ज्यादा होता है, तो हाउ डू वी, इज देयर अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन चेक व्हाट इज द नॉर्मल पीई ऑफ अ इंडस्ट्री? जी कुणाल जी, आपने दोनों सवाल बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग और कहें कि इंटेलिजेंट सवाल पूछे हैं आपने। जो भी बाजार में दिलचस्पी रखता है उसे इन दोनों चीजों को जरूर समझना चाहिए। पहली चीज, ऑपरेटर ड्रिवन, ये ऑपरेटर कहीं नजर में नहीं आते और कहीं उनके बोर्ड नहीं लगे होते, साइन बोर्ड तख्ती लगा करके वो नहीं बैठे होते हैं कि आप कहें कि अच्छा ये शेयर ऑपरेटर ड्रिवन है या नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है एक निवेशक के रूप में, आपको सेंसिबल इन्वेस्टिंग करनी है। और उसका तरीका क्या है? आप फंडामेंटल्स पे जाइए, आप कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से देखिए, उसके वैल्यूएशन जिस पर आपके पहले से नजर है, आप उसके वैल्यूएशंस को देखिए, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है, उसकी इंडस्ट्री का एनवायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें समझ करके अगर आप काम करेंगे और अपना फोकस जो है वो बहुत ही जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनकी तरफ ले जाने के बदले जो अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं, उन पर अगर आप अपना ध्यान अधिक रखेंगे तो आप इन सारी चीजों से बचे रहेंगे जिनको आप कहते हैं ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स। दूसरे, आपने पूछा एक्सेस वैल्यूएशन को कैसे समझा जाए। ये बात आपकी सही है, कहीं पे किसी इंडस्ट्री में आप कहें कि 15-20 का पीई है वो भी महंगा लगता है, कहीं पे आपको 40 का पीई भी सस्ता लगता है, तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो बेसिकली आपको कंपनी और उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट समझनी पड़ेगी, उसके प्रोस्पेक्ट्स किस तरह से हैं। जो इंडस्ट्री या जो कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको 40 का पीई भी कम लगेगा, और जिस इंडस्ट्री में स्टैग्नेशन है या जिस कंपनी में स्टैग्नेशन है वहां पर आप 10-15 का पीई भी कहें कि वो बहुत महंगा लगेगा। ये जानना चाह रहे हैं कि कोई एक प्लेटफॉर्म है जहां इन कंपनीज के पीई के बारे में हम पता कर सकते हैं? देखिए, पीई के नंबर्स तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे आसानी से उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे का रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा कि वो जो पीई हमें दिख रहा है वो ठीक है, सस्ता है, महंगा है। संजय मुंबई से जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ लें। कट चुके हैं संजय जी का कॉल, आगे फिर आप जुड़े हमसे। तब तक इस सप्ताह के शेयर बाजार पर चर्चा कर लें। इस सप्ताह भी लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पूरे सप्ताह के दौरान 628 अंक गिरा है, 75,311 पर आ चुका है। निफ्टी में भी पूरे सप्ताह के दौरान 133 अंक की गिरावट रही और ये 22,796 पर आ गया। विस्तारित बाजार
बाजार में हालांकि इस सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप लगभग 2% तेजी पर बंद हुए। पहले थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे राजीव जी के साथ इस पर, फिर संजय जी आपके पास आते हैं। तो अब देखिए, एक जहां हम 25,000 26,000 निफ्टी को देख रहे थे, अभी 22,000 पर आ गया है। और थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत एक अपॉर्चुन मौका हो सकता है अगर कोई इस समय इन्वेस्ट करता है तब। लेकिन आमतौर पर राजीव ये होता रहा है कि जब मार्केट गिरता है तो बहुत लोग घबरा कर इससे निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे बिकवाली बढ़ती है और मार्केट में और गिरावट आती है। एक आम निवेशक इस वक्त कितनी और किस सेक्टर में खरीदारी कर सकता है, क्या उचित होगा इसके लिए? देखिए, एक समय था जब आप किसी भी सेक्टर में हाथ लगाते, बीच में एक अच्छा लंबा फेज चला जिसमें आप कहें कि बाजार का हर हिस्सा चल रहा था। यहां पर क्या वो स्थिति आ गई है दोबारा? क्या बाजार इतना सस्ता हो गया है कि आप कहीं भी पैसा लगा दें और वो आपका पैसा आगे बढ़ जाएगा? आज की तारीख में वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो 25-26 हजार के बीच में जब निफ्टी था और उस समय वैल्यूएशन की चिंता हर कोई जता रहा था, आज की तारीख में वो चिंता कम हो गई है। लेकिन क्या हम एकदम सस्ते बाजार में आ गए हैं? वैसा भी नहीं है। तो आपको सोच समझ करके पैसा लगाना पड़ेगा। सेक्टर वाइज अगर मैं इन जनरल मार्केट पर्सपेक्टिव की बात करूं, जो आम धारणा है वो बैंकिंग में, फार्मा में, इस सब में लोग थोड़ा मान रहे हैं कि चूंकि ये पहले ज्यादा चले भी नहीं थे और इनमें गुंजाइश अभी बनी हुई है। इस तरह के सेक्टर्स चुने जा सकते हैं। वो लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन सबको अपना अपना रिसर्च करना पड़ेगा और उसके हिसाब से। लेकिन खास तौर पर राजीव, अगर हम बात करें इंफ्रा की, हमने देखा कि पिछले साल के बजट में भी इंफ्रा पे बहुत जोर था और उसके बाद पूरे साल इंफ्रा के जो शेयर्स थे इस सेक्टर के काफी बढ़े थे। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टैग्नेशन उसमें है, थोड़ी सी गिरावट भी है। हालांकि पूरा मार्केट गिरा है, ग्लोबल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इसके बावजूद इंफ्रा का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को अपना बनाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, उस सेक्टर की सारी कंपनियां चलेंगी। वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होकर के रिसर्च करना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर डेट बर्डन कितना है, कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कितनी है, कंपनी के हाथ में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस गति से चल रही हैं, क्या वो प्रोजेक्ट्स कहीं अटके हुए तो नहीं है। आपको काफी गहराई से जाकर के उसमें रिसर्च करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज उसमें जरूर मिलेंगी, लेकिन आप बस एक बात ध्यान रखिए कि भाई फैंसी हो गया कोई सेक्टर, इसलिए उसमें पैसा नहीं लगाना है। एंड नाउ लेट्स टेक द कॉल फ्रॉम संजय, who's calling us from Mumbai. Sanjay, welcome to the program. Ask your question. संजय जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। जी नमस्कार सर, मैं संजय मुंबई से। जी सर, ये सिल्वर और गोल्ड में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं? और सर, अभी मार्केट इतना क्यों डाउन चल रहा है? मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, हजारों रुपए डाउन हो गया। थैंक यू। एक सामान्य चिंता सबकी। जी देखिए, अब बाजार क्यों गिरा है, अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि जब 25-26 हजार के आसपास निफ्टी था तो वैल्यूएशन की चिंता थी। उसके अलावा दूसरे तमाम फैक्टर्स होते हैं, बीच में आपकी जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं वो थोड़े हल्के पड़े। लेकिन बाजार को भविष्य देखना होता है, तो मुझे लगता है कि यहां से वापस आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देख करके बाजार की स्थितियां बहुत खराब नहीं होंगी, यहां से अच्छी ही होंगी। इनका दूसरा सवाल था सोने और चांदी में किस तरह से निवेश करें। तो यहाँ संजय जी, आपके लिए बहुत आसान तरीका है, आज की तारीख में उपलब्ध है। आप गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ आप चुन सकते हैं। उसके लिए आपको कोई डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, या अगर पहले आपने खोला हुआ है तो अच्छा है। तो आप गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ, इनके माध्यम से अगर आप पैसा लगाएंगे तो उसमें आपके पास लिक्विडिटी, यानी जब चाहें तब पैसा निकाल पाने की सुविधा भी रहेगी और सेफ भी रहेगा। घर में आप सोना चांदी रखें, वो बहुत सेफ चीज नहीं है। बिल्कुल। और मार्केट आमतौर पर अनुभव जब गिरता है तो सोने की कीमतें तो बढ़ती हैं। अभी हम कह सकते हैं कि सोने की चांदी हुई है। हाँ, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी एक रिस्क को महसूस करके सेफ इन्वेस्टिंग की तरह से गोल्ड सिल्वर की तरफ ज्यादा झुकाव रहा, गोल्ड खास करके। लेकिन अगर इक्विटी की तरफ वापस निवेशकों का रुझान बढ़ गया तो फिर सोने की चमक हल्की पड़ेगी। बिल्कुल। और लेते हैं अगली कॉल, दैट इज अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम वैद्यनाथ जी। वैद्यनाथ कॉल कर रहे हैं, सवाल पूछिए। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर जी, सवाल ऐसा है कि क्या आम निवेशक के लिए सही समय है ये निवेश करने का इक्विटी में? धन्यवाद।
ये सवाल हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अनुभा जी ने कहा कि हाँ ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, और हाँ बिल्कुल अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, बशर्ते आप इस बात को ध्यान रखें कि आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, वो अगले एक महीने में 95 रुपए का नहीं हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। टाइम पीरियड अगर थोड़ा सा अपना लंबा रखें, मतलब 3 साल 4 साल का रखें, तो कोई भी समय वो 3-4 साल भी छोटा है। अगर आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं जी, तो आपको शेयर बाजार में 10 साल 20 साल इस तरह से सोचना पड़ेगा। Ji. And the next caller is coming in from Delhi. That's Mr. Preetham. But before we take your call, Mr. Preetham, let me give you an overview of how the US markets behaved this week. The US markets declined yesterday, extending their sell-off in the wake of unpleasant economic reports, new tariff threats, and worries of softening consumer demand. All three major US stock indices moved lower on the heels of the data. The Dow Jones Industrial Average fell 749 points, or 1.7%, to 43,428. The S&P 500 lost 104 points, or 1.7%, to 6,013. And the Nasdaq Composite lost 438 points, or 2.2%, to 19,524. The S&P 500 suffered its largest single-day percentage drop since December 18th. For the week, all three indices lost ground, with the Dow registering its steepest Friday-to-Friday plunge since mid-October. Economic data showed U.S. business activity decelerating and consumer sentiment deteriorating. The data comes on the heels of Walmart's disappointing guidance on Thursday, which sparked fears of dampening consumer demand. And now let's take the call from Preetham. Preetham, welcome to Market Mantra. जी, सवाल पूछें। जी नमस्कार पूरी टीम को अपनी। सर मैं पता करना चाह रहा था कि अब जैसे कि गोल्ड का जो है इन्वेस्टिंग के लिए तो ठीक है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस लोग ठीक है, लेकिन जो अब शादियों का सीजन चल रहा है या आगे भी चलेगा तो उनको दिक्कत होगी, तो उसका कुछ ऐसा है कुछ कि गोल्ड के रेट कब तक हल्के होंगे, कम होंगे, या आगे बढ़ते ही रहेंगे? जी प्रीतम जी, गोल्ड को अगर आप एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के रूप में देखते हैं तो उसकी रणनीति अलग है, और यदि घर में 1 महीने बाद शादी है तो उसके बारे में तो अलग तरीके से फैसला लेना पड़ता है। वो ऐसा मौका है जिस समय आप सोने की खरीदारी टाल नहीं सकते, तो उस समय तो जो भाव है उसी में आपको अपना बजट में थोड़ा मैनेज करके करना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं इनको आपको 5 साल 10 साल 20 साल पहले से प्लानिंग करते रहना पड़ता है। ये ऐसे जीवन के बड़े फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे बच्चों की शादी, या आमतौर पर पेरेंट्स इस बात का ध्यान करते हैं, तो इसके लिए आपको 20 साल 10 साल इस तरह से पहले से सोच करके चलना पड़ता है। आप इमीडिएटली 2-4 महीने के उतार चढ़ाव से ये फैसला नहीं कर सकते कि मुझे इस समय सोना खरीदना है या नहीं खरीदना है, अगर शादी घर में अगले महीने या 2 महीने बाद आने वाली है तो। Ji. And now let's take another news. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has informed that the first regional office of the Central Register Cooperative Society will be opened in Pune. He was speaking at the concluding ceremony of the Platinum Jubilee year of the Janta Sahkari Bank in Pune today. Mr. Shah said that similarly, an umbrella organization has been formed to help and support the cooperative banks across the country to get them out of financial difficulties, and this organization will work to strengthen all the cooperative banks. Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Ajit Pawar and Eknath Shinde, Union Minister of State for Civil Aviation Muralidhar Mohol, State Minister for Higher Education and Technical Education Chandrakant Patil, and other dignitaries were present on the occasion. Rajiv, we were just talking about the US markets and how they lost almost like 2% during the week. A persistent, question in everybody's mind is US President Donald Trump, who's announced these tariffs. So are these a big worrying factor? Because I think that is affecting all the markets around the world. What would you say? देखिए, अमेरिकी बाजार में जब ट्रंप चुने गए और ये चुनावी नतीजा सामने आया, उसके बाद से ही एक उत्साह देखने को मिला, और उसके पीछे लोगों को ये लगा कि ट्रंप अपनी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छे उपाय करेंगे। लेकिन अब टैरिफ को लेकर के जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह के तेवर उन्होंने दिखाए हैं, ये एक तरह की दोधारी तलवार है। शुरू में तो अमेरिकी बाजार को अच्छा लगा, लेकिन अब वो उसके रिस्क फैक्टर्स को भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है, और खास करके इस हफ्ते में जिस तरह से अमेरिकी बाजार अचानक से थोड़ा सा लाली की तरफ बढ़े हैं,
और मुझे और खास करके राजीव ये भी, जबकि अभी हर फ्रंट पर वहां पर उथल पुथल चल रही है। अभी नेवल चीफ को हटाया, उसके पहले जनरल को हटाया, तो मार्केट हो सकता है कि अभी मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर अमेरिकी बाजार यहां से लगभग 10% करेक्ट हो जाए। बिल्कुल। और अब वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। राजीव, आप आए, आपसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi will release the 19th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme on Monday. Domestic markets declined for the second straight week. Both Sensex and Nifty drop over 0.5%. And US benchmark indices fall nearly 2% on concerns about economy and tariffs. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow. Do tune in then. Till then, namaskar. नमस्कार। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.